Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the session where I have come up with the number one strategy of NABARD grading for agriculture students. If you are someone who has done BSc in agriculture or MSc in agriculture and now you are thinking कि यार चलो NABARD की प्रिपरेशन कर लेते हैं बट आपको क्लियर आइडिया नहीं है कि इसका पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जानना है कि यार इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि मैं इस नाबार्ड एग्जाम को क्रैक कर सकूं, राइट? सो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो एंड थ्रू दिस वीडियो आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट रिगार्डिंग नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन. But before starting my video, I have an request. You can join us on our YouTube channel if you are new to our YouTube channel, and also you can join us on our Telegram channel if you want to download the informative PDF regarding NABARD and NABARD examination. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले पैटर्न की बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहता है एग्जामिनेशन का. सो बेसिकली एग्जाम जो है इट इज बीइंग कंडक्टेड इन द 3 phases. देयर इज phase 1 that is preliminary. After you clear your phase 1, then you will be called for phase 2 that is mains, and then you will be called for interview. And your final selection will be decided by the score the marks you score in your phase 2 as well as interview. ठीक है, phase 2 और interview के marks जोड़ के आपका final selection decide होगा. So ये तो रही overall pattern की बात. अब देखते हैं phase 1 का pattern कैसा रहता है, right? So talking about phase 1, in phase 1 there are 8 subjects that are being tested by NABARD. ठीक है, 8 subject है जो नाबार्ड जिसका टेस्ट लेता है. अब घबराना नहीं है कि यार मैं तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, मुझे तो सिर्फ एग्रीकल्चर आती है, मैं इन 8 सब्जेक्ट को कैसे पढूं? सो नो नीड टू वरी. दे सी the beautiful thing about the phase 1 of NABARD grading, that is that NABARD has divided these subjects into 2 parts, non-merit and merit section. In non-merit section you just need to clear the minimum cutoff, while in merit section you need to clear the minimum as well as overall cutoff. अब आप बोलोगे कि नॉन मेरिट सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मेरिट में कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर किस में आता है, राइट? सो I'm going to tell you that these 5 subjects, that is reasoning, English, computer knowledge, quants and decision making, these are your non-merit section subject. यहाँ पे आपको सिर्फ minimum cutoff clear करनी है. For example, for instance, for a year, minimum cutoff for reasoning is 3. So you just require a minimum of 3 marks to clear the cutoff of reasoning. Okay. So similarly, these are the non-merit subject where you have to clear the minimum cutoff. अब अगर merit की बात करते हैं, merit section कौन सा है? That is your GA, ESI and ARD. अब ये 3 subject हैं that contributes to your merit. यहाँ पे आपके 20 GA से क्वेश्चन होंगे, 40 ESI से एंड 40 ARD के क्वेश्चन होंगे. तो यहाँ पे आपको नॉट ओनली यू हैव टू क्लियर द मिनिमम कट ऑफ बट ऑल्सो यू हैव टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ. क्लियर? सो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स बनेगी ऑफ GA, ESI एंड ARD, where you have to clear the minimum as well as overall cutoff. ठीक है? While in the rest you just need to clear the minimum cutoff to clear the phase 1. ठीक है? तो ये तो रही पैटर्न की. सब्जेक्ट की बात क्या रहते हैं सब्जेक्ट. तो टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 200 of 200 marks, and the version of examination can be Hindi or in English according to your choice. आपको जिसमें सही लगे आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विच इज द टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी आप हिंदी में दे सकते हो, राइट? देन टॉकिंग अबाउट टाइमिंग, सो देयर विल बी 120 मिनट अलॉटेड टू यू फॉर द फेज 1. तो आपको 2 घंटे मिलेंगे एंड 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है. ठीक है? तो ये तो हो गई फेज 1 की पैटर्न की बात. अब अगर आपने फेज 1 क्लियर कर लिया देन यू विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2. अब देखते हैं फेज 2 में क्या पैटर्न रहता है. सो फेज 2 में देयर विल बी 2 पेपर. ठीक है? ये दोनों पेपर ही एक ही दिन कंडक्ट होंगे. इट इज नॉट लाइक दैट कि पेपर 1 विल बी ऑन वन डे एंड देन ऑन सम अनदर डेट पेपर 2 विल बी कंडक्टेड. एक ही दिन में आपके दोनों पेपर होंगे. द पेपर 1 विल बी ऑफ जनरल इंग्लिश विच विल बी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव. What is the meaning of online descriptive? So basically here you have to type the answer in the system provided to you. Okay, here descriptive answer has to be typed by you through using your keyboard and using the system that is provided to you in the examination center. ठीक है? तो ये तो हो गई ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात. कितने क्वेश्चंस होंगे? 3 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 100 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी 90 minutes. After completing your paper 1, you will be given a 30 minute or something a time break. Okay, आपको एक break मिलेगा and after that break your paper 2 will start. ठीक है? आपके पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट आएंगे? ESI and ARD. अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करते हो then you will be getting the paper of ESI and ARD. अदरवाइज अगर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करते हो तब आपको जो पेपर मिलेगा वो मिलेगा
एग्रीकल्चर से, ठीक है, दैट विल बी स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। अब अगर इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, देखो अगर आपको लग रहा होगा कि यार लास्ट ईयर तो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की पोस्ट आई नहीं थी, ठीक है, तो अगर स्पेशलिस्ट की पोस्ट नहीं आती है देन ऑल्सो यू कैन सिंपली गो फॉर अप्लाइंग, यू कैन सिंपली गो फॉर फिलिंग योर फॉर्म थ्रू जर्नलिस्ट पोस्ट, आप जर्नलिस्ट से अप्लाई कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि जर्नलिस्ट से अप्लाई करूंगी तो मैंने एग्रीकल्चर जो 4 साल पढ़ा था वो वेस्ट नहीं हो गया, मतलब उसमें मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, बट ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। सी यहाँ पे आपको ईएसआई एंड ईआरडी से क्वेश्चन आएगा, एंड ईएसआई एंड ईआरडी आप ऑलरेडी फेज 1 में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप फेज 1 की अच्छे से तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी फेज 2 की भी तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप फेज 1 में ऑलरेडी ईएसआई को भी कवर कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ईएसआई एंड ईआरडी दोनों से पेपर आएगा इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम जर्नलिस्ट। हाँ, अगर स्पेशलिस्ट की पोस्ट आती है और आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई मेरे को मेरे सब्जेक्ट में सब कुछ पता है, देन गो फॉर अप्लाइंग फॉर योर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट पोस्ट, फॉर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट पोस्ट, एंड यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन पेपर एग्रीकल्चर से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो बेसिकली पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ओके। देयर विल बी 30 ऑब्जेक्टिव, 6 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ these 6 only 4 you have to attempt, okay। These 30 question will be of 50 marks. How? See, out of 30 your 20 question will be of 2 marks and your 10 question will be of 1 marker, totaling your 15 marks, ठीक है। And talking about your descriptive, you have to attempt 4 question, right? So 2 will be of 15 marks, that is 30 marks, and 2 will be of 10 marks, that is completing your 50 marks of descriptive. So total यहाँ पे आपका objective 50 marks का होगा, descriptive 50 marks का होगा। Time duration for objective is 30 minute, आपका objective के तुरंत बाद descriptive start हो जाएगा, and time duration for that is 90 minutes, ठीक है। और descriptive में again आपको कीबोर्ड यूज करके टाइप करने होंगे आंसर अपने सिस्टम में, ठीक है। So this was the overall pattern of phase 1 and phase 2। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। सो यस, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ओवरऑल ऑफ योर, अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे फ्रॉम योर ओवरऑल स्कोर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 नंबर का क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन किया तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो दैट वाज अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू, राइट। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो वी हैव सीन दैट कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी इन फेज 1, एंड फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जो कि अलग होता है। बाकी अगर आप जर्नलिस्ट से अप्लाई करो तो ईएसआई एंड एआरडी इज कॉमन देयर, राइट। मूविंग ऑन टू द कि अब इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, एआरडी का सिलेबस क्या है, ईएसआई का सिलेबस क्या है, क्वांट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो एआरडी का सिलेबस तो ये रहा, ठीक है, नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया होता है तो ये रहा। अब एआरडी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाती है क्योंकि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, बट स्टिल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि यार एग्रीकल्चर तो हम कर लेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपके कुछ एलाइड सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, जैसे कि आपका हो गया रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आपको रूरल डेवलपमेंट में फोकस करना है, आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में फोकस करना है, आपको फिशरीज में फोकस करना है क्योंकि फिशरीज ऑब्वियसली हम कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर इन सब चीजों में ये जो एलाइड सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको एक बार पूरा सिलेबस कवर करके कुछ जो आपके एलाइड सब्जेक्ट है उनमें फोकस करना है। तो ये रही एआरडी की बात। टॉकिंग अबाउट ईएसआई, अब आई नो थोड़ा ईएसआई हमारे लिए अलग सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने ईएसआई पढ़ी नहीं है ना, बट NABARD has clearly given the syllabus, they have given the syllabus की okay this will be the important topic and यहाँ से आपको पढ़ना है। Now what you can do, you can just refer to the syllabus, look at the PYQs and then you decide कि okay these are the important topics from ESI and then try to cover your ESI, ठीक है। That is about ESI। तो ये पूरा सिलेबस हो गया आपका ESI का। अब बात करते हैं क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की फेज 1 के लिए। तो क्वांट्स में आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इन NABARD ग्रेड। तो यू हैव टू प्रिपेयर दीज चैप्टर, स्पेशली द फर्स्ट 5-6 चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NABARD एग्जामिनेशन बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स आर मोर एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करनी है, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है, राइट। तो आपको कुछ टॉपिक्स आपके
होल्ड में होने चाहिए कि यार इन टॉपिक से जितने क्वेश्चन आएंगे आई विल बी डूइंग दैट करेक्टली और मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा। तो क्वांट्स में ये हो गए। टॉकिंग अबाउट रीजनिंग में दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है। देन इंग्लिश में दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Talking about your computer awareness, so there is a list of list of important topics for computer awareness as well as decision making. So you can have a look at it. You can take the screenshot or you can download the PDF also, right? And talking about phase 2, for phase 2 we have descriptive English. Okay, so there will question can be from the essay writing, reading comprehension, pressy writing, letter writing. यहाँ से कहीं से भी question आ सकते हैं. There will be 3 questions, ठीक है। तो यहाँ पे आपको descriptive answer की भी प्रैक्टिस करनी है फॉर फेज 2। सो अब ये तो हो गया सिलेबस की बात, सब्जेक्ट की बात हो गई। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो योर नेशनैलिटी शुड बी इंडियन, ठीक है, आप इंडियन होने चाहिए। देन देर इज नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स, आप कितनी भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, नाबार्ड के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। देन क्वालिफिकेशन, यू हैव ऑलरेडी डन बीएससी इन एग्रीकल्चर, राइट। सो आपकी अगर ग्रेजुएशन में यू हैव स्कोर्ड 60% मिनिमम एग्रीगेट, ठीक है, आपका एग्रीगेट 60% है, देन यू आर एलिजिबल। And for instance, if you are not able to make 60% in your graduation, but you have done the post graduation in agriculture and you have scored 55% minimum, then also you are eligible for NABARD grade A through your post graduation degree, ठीक है। Talking about age limit, so age limit, there is a age limit of which NABARD has given, that 21 to 30 years, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर फॉर सिटिंग इन नाबार्ड ग्रेड ए, while there is a relaxation for SC, ST, OBC and PWBD candidates. So that was about the eligibility criteria for sitting in NABARD grade A. अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है, जनरल कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि आई नो दैट कट ऑफ इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ रहती है, कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, राइट। तो ये दिस इज द लिस्ट ऑफ कट ऑफ 2021 एंड 22। सो ये प्री फेज 1 की कट ऑफ है। आप देख सकते हो क्वांट्स में द 2021 में इट वाज 5 while it was 3 in 2022, ठीक है। रीजनिंग में 3.75 थी, ऑलमोस्ट सेम इन 2022। Then English में it was 11.25, which have increased slightly by 12.5 in 2022. Then 21 में computer knowledge में cut off was 3.25, 2022 में it is 5.5. Then decision making की cut off 1.25 से 1.5 हो गई है। जनरल अवेयरनेस 3.25। देन ERD की देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जीए की कट ऑफ इज 3, हियर इट हैज इंक्रीज टू 3.25। ERD की 6.50 कट ऑफ एंड इन 2022 इट वाज 6.75, तो ऑलमोस्ट 6, 7 या 8 इतना मान के चलो कि ये आपकी मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। अब ESI की बात करें तो यहाँ पे 4.5 आपकी 2021 में है, जो कि थोड़ा कम हो गई थी, थोड़ा क्या आधा ही हो गई है, ऑलमोस्ट 2.25 इन 2022। तो अब ये मत सोचना कि मेरे अगर इसमें 4 हो गए, इसमें 8 आ गए, इसमें 4 आ गए और मेरे इतने कितने हो रहे हैं 16 नंबर आ जाएंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। That is not the case. See, I have already told you, here you have to clear the minimum as well as overall cutoff, ठीक है। overall cutoff was 41.75, तो आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए यहाँ से वो 41.75 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो ये है कट ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए। इस तरीका का इस तरीके का पैटर्न रहता है और आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्वांट्स में कट ऑफ कमी है 3, 5, 7, ठीक है। तो आपको इतनी प्रिपरेशन करनी कि आपके 7, 8 मार्क्स यहाँ पे आ जाए, ठीक है। So that was about quants और reasoning especially because I know that कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा क्वांट्स रीजनिंग कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है फॉर सम स्टूडेंट्स, नॉट ऑल बट फॉर सम स्टूडेंट। तो आपको इनकी कट ऑफ देख के पता करना है कि ओके कितनी प्रिपरेशन करनी है कि मेरे इतनी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, यू कैन डू इट, आई नो। अगर आप तैयारी करोगे तो इट इज ईजी फॉर यू। तो ये तो रही कट ऑफ की बात। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रैटेजी की, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया, आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। देन रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की, इंपॉर्टेंट नाबार्ड किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, किस चीज को पूछता है इन एग्जाम्स, दैट इज यू कैन एनालाइज दैट थ्रू योर PYQs, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम आपको पता होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्या मांग रहा है मुझसे, एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। देन you should be consistent in your
preparation and you should have a practical plan. ठीक है, अब उस प्लान की बात कर लेते हैं. तो पहले आपको क्या करना है, you have to first cover your ARD static and ESI current. अब ये मत सोचना कि यार ARD static क्यों पढ़नी है, हम तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं. स्टिल यू हैव टू कवर इट वंस. ठीक है, ARD स्टैटिक का थोड़ा ज्यादा रोल है, तो ARD स्टैटिक इंपॉर्टेंट भी है, आपको एक बार उसे कवर करना है, और साथ साथ में यू हैव टू डू ESI करंट. ठीक है, देन स्टार्ट ESI स्टैटिक. ESI स्टैटिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. एक बार ARD स्टैटिक हो गया, ESI करंट हो गया, देन ESI स्टैटिक उठा लो, ESI स्टैटिक पढ़ने लग जाओ, राइट. एंड साथ साथ में यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए, तो साथ साथ में इंग्लिश भी प्रैक्टिस करते रहो. आफ्टर वंस यू हैव डन दिस, देन स्टार्ट डूइंग करंट अफेयर ऑफ ESI एंड ERD. सी ESI का करंट अफेयर यू हैव टू डू, बिकॉज जब तक एग्जाम होगा उससे पहले दिन तक के भी करंट अफेयर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, राइट. तो करंट अफेयर आपको करते रहना है, और साथ साथ में ARD के करंट अफेयर भी करते रहो. देन pick your quants, reasoning and English on weekends. ठीक है, once you are done with this, then can do your quants, reasoning, English on weekends. Then once this is done, then what you can do, करंट अफेयर तो डेली करना ही है. देन स्टार्ट डूइंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ठीक है, अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ एंड प्रिपेयर योर डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस. ठीक है, once you have done this, then what you can do, what is the important thing that you have to keep in mind from starting is revision. See, रिवाइज एज मच टाइम एज यू कैन, बिकॉज किसी भी चीज को, किसी कंसेप्ट को, किसी फैक्ट को रिटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिविजन. और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन रिटेन करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका रिविजन. सो डू रिवाइज एंड रिवाइज एज मेनी टाइम एज यू कैन, सो दैट यू कैन रिटेन ऑल दीज इंफॉर्मेशन. क्योंकि इधर आपने जो पढ़ा होगा ना, यहाँ आते आते आप भूल जाओगे, फिर आपको वापस से ये स्टार्ट करना होगा, राइट. सो बेटर इज कि आप इसको पढ़ते पढ़ते इसको खत्म करके इसको रिवाइज करो, देन स्टार्ट दिस एंड this revision should be continuous process. ठीक है, रुकना नहीं चाहिए, because once you will stop, then you have to again read all these things from starting, from zero you have to start, right. So that was about your strategy, and I hope you have got a clear idea that how you can approach to this, what should be your approach for the NABARD grade A preparation. ठीक है, so that was all from my side. And at last I would like to say here that कि only your consistency and dedication for this exam or any goal in your life is important. ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेटेड रहना है, और उसके साथ साथ डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, राइट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.